Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Listeners, welcome to Market Mantra, the program in which we give you a comprehensive and complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Sarabjit Kaur and with me is my co-anchor Sonu Sood. धन्यवाद सरबजीत। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित है आर्थिक विश्लेषक विशाल दहिया। विशाल जी, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। धन्यवाद सोनू जी। और अब हेडलाइंस के साथ है सरबजीत कौर। Benchmark domestic indices register losses. Sensex dips over 200 points. Nifty closes at 23,603. EPFO achieves milestone of crossing 5 crore claim settlement mark in financial year 2024-25, says Minister for Labour and Employment, Dr. Mansukh Mandavia. Major Asian stocks end with gains. All European indices trade in positive territory. And global crude oil prices rise. Brent crude trades at $75.13 per barrel. प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक मंदी में सेंसेक्स 200 अंकों से अधिक गिरा। निफ्टी 23,603 पर हुआ बंद। ईपीएफओ में वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान दावों के निपटारे की संख्या 5 करोड़ के स्तर को पार कर गई, कहा श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने। प्रमुख एशियाई बाजार बढ़त में रहे। सभी यूरोपीय सूचकांकों में सकारात्मक रुख रहा और कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में वृद्धि। ब्रेंट क्रूड $75.13 प्रति बैरल पर। सबसे पहले शेयर बाजार, जहां प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक आज गिरावट पर बंद हुए। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.27% की मंदी से 313 अंक कम होकर 78,058 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी लगभग 0.4% की गिरावट से 93 अंक कम होकर 23,603 पर बंद हुआ। व्यापक बाजार की बात करें तो बीएसई मिड कैप सूचकांक में 0.8% से अधिक की गिरावट दर्ज हुई। हालांकि स्मॉल कैप सूचकांक बिना किसी खास बदलाव के बंद हुआ। And yes, to benchmark domestic equity indices logged losses today. The 30-share index at Bombay Stock Exchange, Sensex, dipped 213 points or 0.27% to close at 78,058. Similarly, the National Stock Exchange, Nifty 50, fell 93 points or almost 0.4% to settle at 23,603. In the broader market indices at BSE, the mid-cap index shed over 0.8%, while small-cap index ended flat. In the Sensex index, 20 out of 30 companies ended in negative territory. In the top laggards, Bharti Airtel dropped over 2.4%, Titan shed more than 2.2% and NTPC fell over 2.1%. Meanwhile, among the top gainers, Adani Ports rose over 1.7%, Infosys advanced over 0.9% and Axis Bank gained 0.7%. In sectoral indices at the BSE, 16 out of 21 sectors ended down. In top laggards, realty shed over 2.1%, consumer durables lost over 2% and telecommunication fell over 1.7%. Conversely, among top gainers, focused IT gained 0.4%, information technology added 0.35% and healthcare increased 0.17%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,030 companies declined and 1,908 advanced while 125 remained unchanged. At the National Stock Exchange, 38 companies hit their 52-week high, while 32 hit their 52-week low. Vishal, your view on the stock market picture for the day and
Any connections of this with the much-awaited MPC's decisions scheduled to be out tomorrow? Well, Sabjit, you're right. In fact, that's one of the anticipatory, kind of nature which was witnessed in today's stock market. Right. Specifically, when the anticipation builds up very high, then there are some jittery responses as well. So might be in part we may contribute today's movement on the indices to one, anticipation regarding the RBI's MPC announcement, which is going to happen on Friday morning. Also, I believe in some of the, leading stocks on the market, there was sort of a selling spree after the quarter three results, because in fact today more than 170 companies announced their third quarter results. That's right. And some of them performed really well, but their stocks were not performing well on the exchange. Perhaps maybe, because of the fact that some investors were more interested in profit booking. If you look at Nifty, then there was a bearish outlook. But if you look deeper into the, daily time frame and the structure and the chart as well, then we'll see sort of a bullish approach as well in terms of bullish high highs and bullish low highs as well. So if you look at that sort of chart, then it looks like there is still a resistance level which is there for the Nifty, and that resistance level is kind of a support structure and a frame for Nifty to go ahead up from here onwards. But again, the anxiety which is built up for the MPC announcements to be made on Friday, that is something which all the traders, all investors would be keeping an eye out tomorrow morning when the market opens. विशाल जी, आज अगर हम देखें तो रियल्टी में 2.1% की गिरावट आई, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 2% से अधिक की गिरावट, और ऑटो में भी गिरावट है 0.8% की, पीएसयू बैंक्स में, एफएमसीजी 0.8%. सो बेसिकली जो सारे रेट सेंसिटिव सेक्टर्स हैं उनमें हम गिरावट देख रहे हैं. तो किस प्रकार की नर्वसनेस है? क्या कोई एंटिसिपेशन नहीं है कि रेट कट होगा? क्या अभी स्थिति क्या है ग्रोथ और इन्फ्लेशन का जो एक कहें कि बैलेंस होता है उसको लेकर, और किस तरह का आप अनाउंसमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं आरबीआई से कल? देखिए, अगर मार्केट्स के सेंटिमेंट्स की बात करें और आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो मॉनेटरी पॉलिसी की घोषणा होने वाली है, उसके लिहाज से अगर देखने की समझने की कोशिश करें तो जैसे कि मैं कह रहा था कि एक एंग्जाइटी जरूर बिल्डअप हुई है, लेकिन थोड़ा सा इन नंबर्स को, किस बात की एंग्जाइटी? एंग्जाइटी इस बात को लेके है कि आखिरकार क्या फैसला आरबीआई की तरफ से लिया जाएगा. एक हॉकिश स्टैंड आरबीआई ने मेंटेन किया है, लेकिन चेंज ऑफ गार्ड है, यानी कि नए आरबीआई गवर्नर आए हैं. लगभग 2 महीने से ज्यादा का समय हो गया है उनको अपना पदभार संभाले हुए, और अब एक गवर्नर के तौर पे, आरबीआई गवर्नर के तौर पे ये पहली मॉनेटरी पॉलिसी का फैसला होगा उनके नेतृत्व में. तो किस तरह का आउटलुक होगा, खासतौर पे जब हम इन्फ्लेशन के आंकड़ों की बात करते हैं, क्योंकि आरबीआई ने बार बार ये कहा है कि जो महंगाई है, महंगाई की जो दरें हैं, उनको लेकर आरबीआई कोई समझौता नहीं करेगा. और अब इस वक्त जो वैश्विक बाजारों की भी जो स्थिति है, और खासतौर पे विश्व में जो आर्थिक परिदृश्य अगर उसकी बात की जाए, थोड़ा एक आउटलुक की बात की जाए, तो जो टैरिफ वॉर्स जिसे कह रहे हैं, जिसकी शुरुआत हो चुकी है अमेरिका और चीन के बीच, अमेरिका और उसके जो और 2 पड़ोसी देश हैं, मैक्सिको, कनाडा, उसका असर बाकी जो इकोनॉमीज है और खासतौर पे जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उस पे क्या पड़ सकता है. तो इन सब फैक्टर्स को लेके थोड़ी सी एंग्जाइटी जरूर बिल्डअप है, और शायद उसी में जो इन्वेस्टर्स हैं और जो मार्केट के प्लेयर्स जिन्हें कहा जाए, चाहे वो ट्रेडर्स हों या एनालिस्ट हों, वो जरूर सांस रोके इस बात का इंतजार कर रहे होंगे कि नए गवर्नर साहब जो आए हैं आरबीआई में, वो और उनकी जो टीम है वो किस तरह से इस पर क्या आउटलुक रखती है, किस तरह का फैसला लिया जाएगा. हालांकि यहां एक थोड़ी सी राहत की बात जरूर है, और राहत की बात यह है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड ने रेट कट कर दिया है, यानी कि 0.25 बेसिस पॉइंट रेट कट किया है. तो एक क्यूज मार्केट भी लेती है, तो वो क्यू मिल रहे हैं मार्केट को, और शायद वो क्यू के बेसिस पे
कल जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो फैसला आएगा वो बहुत महत्वपूर्ण होगा ये तय करने में कि जो सरकार ने अपने बजट में घोषणाएं की हैं, जिस तरह की आउटलुक दी है अलग अलग सेक्टर्स को लेके, जिसमें कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे भी फोकस किया गया है, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को एक कदम और आगे बढ़ के पुश मिला है। तो किस तरह से जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है वो उसको कॉम्प्लीमेंट करती है और किन सेक्टर्स में करती है, और फिर वो सेक्टर्स जो है मार्केट को आगे लेकर बढ़ेंगे, क्या कल ये देखने को मिलेगा या कल थोड़ी सी एक झांकी देखने को मिलेगी और फिर शनिवार और रविवार के दिन सोच विचार होगा इन्वेस्टर्स का भी, वो भी अपना आउटलुक देखेंगे और शायद फिर सोमवार से वो जो मैं रेजिस्टेंस लेवल की बात कर रहा था उससे शायद ऊपर की तरफ चलना शुरू हो। तो एक तो ब्याज दर में कटौती होती है जिस पर सबकी नजर होती है, दूसरा लिक्विडिटी मेजर्स, कैश रिजर्व रेशियो में कोई किसी प्रकार की कटौती की संभावना है, क्योंकि हाल में आरबीआई ने लिक्विडिटी बढ़ाने के कई किए हैं, पहल उठाई हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। सो उसी डायरेक्शन में आपको लगता है कि इस तरह की कोई अनाउंसमेंट हो सकती है? जी बिल्कुल, और मेरा मानना ये है कि जो सीआरआर है उस पे कोई अनाउंसमेंट होने के ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि जिस तरह के आपने भी बताया, जिस तरह के कदम आरबीआई ने पिछले कुछ महीनों में उठाए हैं लिक्विडिटी को लेकर, उससे लगता है कि जो सेंट्रल बैंक है उसका मानना यह है कि मार्केट में जो लिक्विडिटी है उसकी उपलब्धता और ज्यादा होनी चाहिए। तो सीआरआर में थोड़ी सी छूट मिलने की संभावना हो सकती है, लेकिन सबकी नजर सीआरआर के साथ साथ रेट कट पर भी जरूर रहेगी कि क्या वो फैसला लिया जाता है, और लिया जाता है तो वो क्या 0.25 बेसिस पॉइंट तक ही रहेगा या वो और ऊपर भी जा सकता है। सो आप क्या कहेंगे ओवरऑल, अभी क्या आपकी एडवाइस होगी इन्वेस्टर्स के लिए? जैसा आप कह रहे हैं कि जो वैश्विक परिदृश्य है वो काफी अनसर्टन है, जिसे हम कह सकते हैं कि ट्रम्प टैरिफ थ्रेट्स TTT जो है वो हमेशा एक थ्रेट रहती है, वो कितनी मटेरियलाइज होगी वो तो नहीं कह सकते, क्योंकि बाकी देश भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये जो एक फैक्टर है, इसको देखते हुए जो बाजारों में अनसर्टेनिटी है, गोल्ड भी हमने देखा है कि ऑल टाइम हाईस पे पहुंच गया है। सो ऐसे में इन्वेस्टर्स के लिए आपकी जनरल राय क्या होगी और क्या प्रोस्पेक्ट दिखता है आपको स्टॉक मार्केट का? देखिए, आपने जो TTT की बात की या उसके अलावा जो जिसे कहा जाए जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस जो हैं उनकी तरफ अगर देखा जाए तो ये सब इमीडिएट क्यूज होते हैं, और मार्केट में जो इन्वेस्टर्स हैं वो इमीडिएट क्यूज पे रिस्पॉन्ड जरूर करते हैं, मार्केट इमीडिएट क्यूज पे रिस्पॉन्ड जरूर करती है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। लॉन्ग टर्म आउटलुक क्या रहेगी? तो लॉन्ग टर्म आउटलुक के लिहाज से देखा जाए तो भारतीय शेयर बाजार की लॉन्ग टर्म आउटलुक इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहने वाली है क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था की जो मजबूती है, उसकी जो फंडामेंटल्स हैं वो बहुत स्ट्रांग है, नंबर एक। नंबर दो, जो सरकार की आर्थिक नीति है उसमें कंटिन्यूटी है, उसमें कहीं कोई ब्रेक देखने को नहीं मिला है पिछले कुछ सालों से, और जो की सेक्टर्स जिन्हें कहा जाए या फिर इमर्जिंग सेक्टर्स भी कहा जाए, उसमें सरकार की तरफ से जो पॉलिसीज के लिहाज से जो कदम अनाउंस किए गए हैं हाल फिलहाल में और जो उठाए गए हैं वो बहुत हद तक इस बात को इन्फ्लुएंस करता है कि मार्केट्स लॉन्ग टर्म में कैसा बिहेव करेंगी। शॉर्ट टर्म में जरूर मैं मानता हूं कि अगर कोई टैरिफ थ्रेट होती है या कोई टैरिफ वॉर होती है या किसी तरह की कोई घोषणा राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से हो या फिर उसका काउंटर जो है चीन की तरफ से किया जाए या किसी और देश की तरफ से किया जाए, जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस जो चल रही हैं, चाहे वो मिडिल ईस्ट में चल रही हो या फिर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच बात हो रही हो या फिर रशिया और यूक्रेन युद्ध की अगर हम बात करें, तो वो सब इमीडिएट क्यूज हैं और उनका असर जरूर पड़ता है मार्केट पे। शॉर्ट टर्म में हमने देखा है और आगे भी देखने को मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी क्या होगी, लॉन्ग टर्म में क्या आउटलुक रहेगी, उसमें कई फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रहते हैं और उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर होगा कल जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का फैसला आने वाला, वो मिड टर्म के लिए आपको एक प्ले देगा और लॉन्ग टर्म के लिए एक बेसिस बनाएगा कि अब जो नए गवर्नर आए हैं
उनकी क्या आउटलुक रहेगी, उनकी टीम की क्या आउटलुक रहेगी, तो एक अंदाजा लगा पाएंगे इन्वेस्टर्स के अब इस तरह का एक पॉलिसी व्यवहार जिसे कहा जाए वो हम आरबीआई की तरफ से, जैसे आपने कहा कि बजट में फिस्कल पॉलिसी, इनकम टैक्स कट्स, टैरिफ कट्स, बहुत सारी चीजें ऑलरेडी फिस्कल लेवल पर कर दी गई हैं। जी बिल्कुल भाई, अब आप जिस तरह के इनकम टैक्स को लेकर जो फैसले लिए गए हैं उससे जो मिडिल क्लास है, जो उपभोक्ता है, उसको जो बेनिफिट मिल रहा है, उसके हाथ में जो एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है, सर्कुलर इकोनॉमी है, मेरे पास पैसा ज्यादा बचेगा तो मैं उस पैसे को खर्च करूंगा, मैं उस पैसे को खर्च करूंगा तो वो मार्केट में जाएगा, वो मार्केट में जाएगा तो वो जो प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग जो है उसको सपोर्ट करेगा और अल्टीमेटली वो टैक्स देकर जो है देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देंगे। तो ये एक तरह से सर्कुलर प्रोसेस है जिसमें सरकार ने अपना योगदान दे दिया है। अब आरबीआई की तरफ से क्या उसमें अभी आरबीआई मानता है कि उसमें फैसला लेने की जरूरत है या नहीं, इसके लिए कल तक का थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन वो जो मैं एंग्जाइटी की और एंग्शियसनेस की जो बात कर रहा था वो केवल इसी बात को लेके है कि सरकार ने अपने सारे पत्ते सामने रख दिए हैं, तो क्या अब आरबीआई की तरफ से जो फैसला आने वाला है वो किस तरह से आगे लेकर जाएगा। आइए चलते हैं करेंसी बाजार की ओर, जहां भी जो आप कह रहे हैं नर्वसनेस आरबीआई पॉलिसी को लेकर, उसका कुछ असर दिखाई दे रहा है। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज 11 पैसे कमजोर होकर 87 रुपए 57 पैसे प्रति डॉलर के रिकॉर्ड न्यूनतम स्तर पर बंद हुआ। कल भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति की समीक्षा में ब्याज दरों में कटौती की बढ़ती संभावना का दबाव रुपये पर पड़ा। 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक दिन के कारोबार में 107.95 पर था। अगर हम रुपए की बात करें तो सारे ही जो विश्व की करेंसीज हैं वो दबाव में है, सिर्फ रुपया नहीं है। डॉलर में हम देख रहे हैं डॉलर इंडेक्स जो है वो ऊपर जा रहा है, सो दैट इज अगेंस्ट बास्केट ऑफ करेंसीज। सो आरबीआई की पॉलिसी कैसे अफेक्ट कर सकती है रुपए को, क्या संभावना है? देखिए, आरबीआई की पॉलिसी का असर रुपए पे जरूर पड़ेगा, लेकिन आपने जिस तरह से बताया, अगर वैश्विक परिदृश्य से इसको देखें, थोड़ा सा ग्लोबल पर्सपेक्टिव इसमें लेकर आए तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। और खासतौर पे आपने डॉलर इंडेक्स की बात की, तो ट्रंप के सत्ता में आते ही और खासतौर पे राष्ट्रपति ट्रंप का हमेशा से एक प्लैंक रहा है, एक पॉलिसी रही है मागा, यानी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो उसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जो अमेरिकन करेंसी है, यानी कि डॉलर जिसे हम कहते हैं, यूएस डॉलर जिसे कहते हैं, उसकी जो हेजेमनी है दुनिया की मार्केट्स में, उसको बरकरार कैसे रखा जाए। और इस तरह के बयान भी आए हैं राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से ब्रिक्स देशों के लिए भी कि कोई वो अपनी किसी करेंसी की घोषणा ना करें। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर डॉलर को कोई नुकसान हमें होता दिखाई देगा तो हम उसके बदले में जरूर कोई ठोस कदम उठाएंगे, कोई कड़े कदम उठाएंगे। टैरिफ्स की जहां बात हो रही है, वो भी एक अपनी जो करेंसी है या अपनी जो इकोनॉमी है अमेरिका की, उसको किस तरह से बचा के रखा जाए, उसको किस तरह से और फलने फूलने दिया जाए। तो अगर उसको फायदा हो रहा है तो उसका असर सीधे तौर पर जो बाकी करेंसीज हैं दुनिया की, उन पर पड़ रहा है, और भारतीय रुपया उन्हीं में से एक। Listeners, you are with us in our program Market Mantra. Moving on to the next news story, Labour and Employment Minister Dr. Mansukh Mandavia today announced that the Employees Provident Fund Organisation, EPFO, has reached a significant milestone by surpassing 5 crore claim settlements in the financial year 2024-25, exceeding the 4.45 crore claims settled in the previous year. Dr. Mandavia attributed this achievement to a series of transformative reforms introduced by EPFO to streamline the claim settlement process and reduce member grievances. The minister also highlighted that auto claim settlements have doubled to 1.87 crore in the current financial year compared to 89.52 lakh claims processed throughout the financial year 2023-24. Vishal, there is a social security factor associated with EPFO. Does an element of security have a contributory factor on the growth of the economy? What's your view on this? Well, yes, indeed it does have. And, these positive numbers from the EPFO
EPFO do also signify the fact that the numbers, the employment numbers are positive. That's an indicator, Right. and that indicator again points out to another larger indicator that if the employment scenario is improving, even if gradually, day by day, then that means that the health of the economy is something which we should not be worried about at all, because these all are important part and parcels. And again, the point which you started with, that is savings being an instrument, looking at the economic growth aspect. Correct. Of course, 1 rupee saved is equal to 100 rupees in the future. So that saving aspect is really important, and EPFO seemingly has been playing that important role out there. That's right. और ये एक और भी इंडिकेशन है कि हमारा जो इकोनॉमी है वो ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो रही है फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड, जो एक सरकार की वो रही है, प्रयास रहा है डिजिटाइजेशन से भी, सारे जो भी एफर्ट्स हो रहे हैं, जीएसटी को जीएसटी की इम्प्लीमेंटेशन एंड डिजिटाइजेशन, सो जो भी रिफॉर्म्स हैं वो एक्चुअली फ्रूशन में रिजल्ट्स ला रही हैं. जी बिल्कुल, इसको इस तरह से देखा जा सकता है सोनू जी के सरकार की जो नीतियां पिछले कुछ सालों में रही हैं वो रही हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स, यानी कि वो सेक्टर्स तो अनऑर्गेनाइज्ड में ही काउंट करते रहेंगे हम उनको, लेकिन उनमें जो काम करने वाले लोग हैं उनको किस तरह से ऑर्गेनाइज सेक्टर्स के जो बेनिफिट्स होते हैं वो किस तरह से पहुंचाए जा सकें. क्योंकि अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के जो वर्कर्स हैं उनको ऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स की तरह बेनिफिट्स मिलेंगे तो उसका सीधा फायदा न केवल वर्कर्स को पहुंचता है बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी पहुंचता है, क्योंकि उसमें वो कॉन्ट्रीब्यूशन दिखाई देता है. ये वो आंकड़े थे जो कहीं गुम हो जाते थे, लेकिन अब ये आंकड़े जब उभर के सामने आते हैं तो पता चलता है कि नहीं, ये भी एक महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमी में. आइए लेते हैं अगली खबर. पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्यों द्वारा शुरू की गई पर्यटन परियोजनाओं से देश में रोजगार के अवसर पैदा होंगे. राज्यसभा में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी स्थान पर पर्यटन की संभावना बढ़ने से रोजगार सृजन होता है. उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि नियमों के दायरे में आने वाले राज्यों द्वारा दिए गए किसी भी परियोजना प्रस्ताव को मंजूरी देने पर गौर किया जाता है. So, Vishal, we've been talking about employment-led growth in tourism. In the backdrop of India's rich cultural and diverse heritage, how do you see this factor contributing to the country's economic growth? Well, I'll give you some numbers, and those numbers will speak for themselves. And the numbers have been, clearly defined by the government in the budget as well as in the economic survey as well. In the financial year 23, more than 7.5 crore jobs were created in the tourism sector. The foreign exchange earning in the same year was around $28 billion US, which is approximately 1.8%, less than just short of 2% of the overall, world figures. This is a significant improvement, both in terms of the money it brings in, the foreign exchange it brings in, one, and two, the employment it generates. So what the government has done is, it has taken a step forward, and in this year's budget is allocated around 2,500 crore or more than that, if I'm not wrong. That's right. In the budget for the tourism sector. Focus on health tourism, focus on heritage, focus on infrastructure, focus on giving a leg up or a giving push to, the smaller players, very small players in the tourism industry. For example, Mudra loans will now be available to the homestay owners as Correct. well. And more so such schemes. And state governments are being encouraged to go ahead and, come up with a plan and ask for centers' assistance, make a viable plan. And there have been examples in the past as well, a transformative growth story. For example, say around 30 years ago, Kerala was not such big a tourism destination. People were more interested in going to Goa or Rajasthan. But over the course of 3 decades, it has become a tourism destination. Similarly goes for other northeastern states as well. The other hilly states, Uttarakhand is one glaring example. In the past few years, it has performed really well on the tourism part, and it has made a lot of contribution. So clearly,
tourism is one area where there is a huge potential, not only for employment generation, but also for raking in more money for the exchequer in terms of the foreign exchange. 50 नए टूरिस्ट स्पॉट्स डेवलप करने की बात भी की गई है बजट में. That's right. आइए अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की ओर. सरबजीत, प्रमुख एशियाई बाजारों में आज सकारात्मक रुख रहा. हांगकांग का हैंगसेंग 1.4% से अधिक के उछाल पर बंद हुआ. चीन के शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक में 1.2% की वृद्धि दर्ज हुई. दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 1% से अधिक बढ़ गया. जापान का निक्केई 0.6% की बढ़त में रहा और सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक में 0.4% की वृद्धि दर्ज हुई. यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो यहां के सभी बाजार भी बढ़त पर कारोबार कर रहे थे. ताजा समाचार मिलने तक लंदन का फुट्सी 1.1% से अधिक की तेजी पर था. फ्रांस का कैक और जर्मनी का डैक्स दोनों 0.6% से अधिक की वृद्धि पर थे. इस बीच आज बैंक ऑफ इंग्लैंड ने 7.2 की मेजॉरिटी से अपनी प्रमुख ब्याज दर में 0.25% की कटौती कर दी. 5 फरवरी को समाप्त बैठक में मौद्रिक नीति समिति के 7 सदस्यों ने बैंक दर को 0.25% घटाकर 4.5% कर देने का मत दिया. हालांकि 2 सदस्य बैंक रेट को 0.5% घटाकर 4.25% करना चाहते थे. सो आपको लगता है कि ये जो एक डिलेमा होता है कि ग्रोथ को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दें या जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल में रखें, वो सभी सेंट्रल बैंकों की एक दुविधा है. जी बिल्कुल. देखिए, सेंट्रल बैंक एक दुधारी तलवार पे चलता है. उसे ये भी इंश्योर करना है कि ग्रोथ बढ़े और वो जो फैसले ले वो उस देश की अर्थव्यवस्था की जो प्रगति है उसमें रोड़ा ना बने. और दूसरा, उसे ये भी इंश्योर करना है कि जो महंगाई दरें हैं, जो इन्फ्लेशन है, वो कंट्रोल में रहना चाहिए. जो ओवरऑल फिस्कल हेल्थ है जो बैंकिंग सेक्टर है उसकी और जो ओवरऑल सेक्टर्स हैं उनकी भी फिस्कल हेल्थ जो है उस पर कोई प्रतिकूल असर ना पड़े. तो ये डायलेमा तो सभी सेंट्रल बैंक्स के लिए है और कल भारतीय रिजर्व बैंक क्या फैसला लेता है वो बहुत महत्वपूर्ण होगा. सबकी नजरें टिकी रहेंगी इस पर. So indeed, much is awaited for tomorrow morning. Well, U.S. stocks edged higher yesterday, rebounding from declines incurred earlier in the session. The Dow Jones Industrial Average rose over 0.7%. The S&P 500 gained almost 0.4%, and the Nasdaq Composite added 0.19%. तो डीप सीक शॉक जो है वो उससे उबर गए हैं यूएस के बाजार. देखिए, एक मोमेंटस रिलीफ, मैं इसे कहूंगा मोमेंटरी रिलीफ इसलिए क्योंकि जो बॉन्ड यील्ड्स हैं शायद वो एक इमीडिएट ट्रिगर हो सकता है. लेकिन हाँ, यूएस के जो बाजार हैं वो शायद अगर आप जो बहुत बड़ा उछाल और बहुत बड़ी गिरावट की बात कर रहे हैं तो मेरा मानना है कि उनसे शायद अभी निजात यूएस के बाजार को मिली नहीं है क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से अभी कई तीर छोड़े जा सकते हैं. जी. Oil prices rose today. Brent crude was trading 0.7% up at $75.13 per barrel, and WTI crude gained almost 0.8% to trade at around $71.59 per barrel when reports last came in. Meanwhile, the U.S. commercial crude oil inventories increased by 8.7 million barrels from the previous week, according to data released by the Energy Information Administration. Vishal, very briefly, what, in your view, is the reason behind this, its outcome and its impacts? Well, one clear reason which I can say is that, today Saudi Arabia announced new rates for the Asian basket and all. So perhaps they might have contributed to this. But overall, as far as oil prices are concerned, they've been under a lot of pressure because of the geopolitical tensions and situation. Good for India? Indeed. At the end of the day. सराफा बाजार में सोना आज बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था. अंतिम समाचार मिलने तक भारत में 24 कैरेट सोना 0.24% बढ़कर 84,850 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था. वहीं चांदी 0.47% गिरकर 95,800 रुपए प्रति किलो पर थी. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अंतिम समाचार मिलने तक अप्रैल 2025 में आपूर्ति वाला सोने का वायदा मूल्य 0.21% बढ़कर 84,747 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था. वहीं मार्च में आपूर्ति वाली चांदी का वायदा मूल्य 0.53% गिरकर 95,460 रुपए प्रति किलो पर था. समय हमें इजाजत नहीं दे रहा कि हम चर्चा को और आगे बढ़ाएं. बहुत बहुत धन्यवाद आपका विशाल जी, आप कार्यक्रम में आए और हमारे श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी दी.
Thank you, Sonu ji. Thank you, Sarabjit. Thank you, Vishal. And yes, listeners, before we wrap up the show, a reminder of the headlines. Benchmark domestic indices register losses. Sensex dips over 200 points. Nifty closes at 23,603. EPFO achieves milestone of crossing 5 crore claim settlement mark in financial year 2024-25, says Minister for Labour and Employment, Dr. Mansukh Mandavia. Major Asian stocks end with gains. All European indices trade in positive territory. And global crude oil prices rise. Brent crude trades at $75.13 per barrel. And that's it in today's edition of Market Mantra. Namaskar. Market Mantra.